Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 28th of Feb. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. Students, in this video we will be talking about Australia that is planning to invest $60 million to strengthen their economic ties with India. Then DPIIT and Paytm, they have signed an MOU. For what reason, we will be discussing it. Then our Indian Army, they have signed an MOU with L&T. For what, we will be discussing it. Next thing, we will be talking about Indo-French Life Science Sister Innovation Hub that will be established. All these things and many more will be discussed in this video, so stay tuned with us till the end. Students, we upload the daily current affairs video at 5 AM in the morning. Weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise are uploaded regularly. That will help you prepare better for the competitive exams. Also students, do subscribe to us if you are new to our channel, and also share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application, student, by the name Careers Cloud, which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded, which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Students, let's start with national affairs. First is Australia will be investing $16 million to strengthen the economic ties with India. Right? See, investment is a key to enhance relation between two countries, right? You must have seen recently, even Donald Trump, he has said that if you want a gold card, right? Earlier it was green card, now it is your gold card, right? This will be costing almost 43 to 45 crore rupees for Indians. That is $5 million will be required if you want to have this gold card that will be giving you a direct citizenship of USA, right? So what is this? This is basically a form of investment. Similarly, Australia, they are planning to invest $16 million in India that will enhance the relationship between India. And for this, they have launched TIAF, that is your Australia India Trade and Investment Accelerator Fund, right? And this fund is basically for $16 million. This will boost trade. It will enhance the bilateral investment between these two countries. Also will enhance more upcoming trades and business opportunities in these two countries. Here we will be focusing on clean energy, of course. Then we will be talking about tourism, enhancing tourism between these two countries. Then we will be talking about education and enhancing skills for the students, for the youth of these two countries. Here you will be seeing, correct? Next is DPIIT and Paytm. Paytm, we know the famous brand where you go and you make payments, right? UPI payments, right? Paytm, they have signed an MOU with DPIIT that will promote India's manufacturing and fintech startups. We know that Paytm is a fintech, right? Finance and technology platform. So they too have partnered together where they will be focusing on manufacturing, right? They will be accelerating the growth of fintech as well as manufacturing startups in India. Very important, students. This partnership will assist on the fintech hardware entrepreneurs in developing and scaling the payment and financial technology solutions. Also, this agreement will provide infrastructure and market access support to the businesses that will test, validate and enhance their products while leveraging the Paytm's enormous merchant network. Because we know in today's world, in India, if you see, almost, or you can say 40 to 50% of the Indians, they are using the
barcode that has been established by Paytm, right? You pay using your barcode and you receive money through them, right? You can use their barcodes, right? There are multiple sound box also, and recently it was Paytm only that has launched the solar powered sound box. That was the latest innovation, correct? So manufacturing and enhancing the fintech startups, this MOU was signed between them. Next is Indian Army. They have signed an MOU with L&T for ACADA system. What is this ACADA? This is your automatic chemical agent detection alarm system, and 223 such alarm detection systems will be procured. They will be procured for 80.43 crore rupees, and they will be procured under the Buy Indian indigenously designed, developed and manufactured category, with over 80% of the components and subsystems sourced locally, supporting the Atmanirbharta initiative. Correct? Very important, students. And these systems will be used in the field that will significantly improve the Indian Army's defense capabilities for operations as well as for promoting peace. Next is international affairs. India's CCAMP and France Paris Saint campus, they have partnered to establish Indo-French Life Science Sister Innovation Hub, right? So directly remember, as you can see in the picture, PM Modi, and on the right is Emmanuel Macron, the president of France, right? So which are the two companies we are talking about from India? It is CCAMP, that is your Center for Cellular and Molecular Platforms, right? This comes under the Ministry of Science and Technology in the Department of Biotechnology. And from France, it is Paris Saint Campus, right? This is a digital health innovation cluster platform in France, and here they both have signed an agreement, and this will basically enhance the collaboration in the healthcare sector, that is called the Indo-French Life Science Sister Innovation Hub. Indo-French Life Science Sister Innovation Hub, correct? Very important. This was during Prime Minister Narendra Modi when he was on a visit to Paris, France, because he took part in the AI Summit 2025. This program will basically promote healthcare research, innovation, also will focus on establishing and providing specific solutions to the public health issues across different regions. Also, a letter of intent between these two organizations have been signed for this innovation hub that will bring together the top innovation hubs from both the countries to work together on two critical areas, that is One Health and digital health. Next, students, next is Delhi's Indira Gandhi International Airport is among the top 10 busiest airport globally in 2025, and Dubai International Airport has secured the top position here. So Indira Gandhi International Airport was on the 8th position here globally, right? In the top 10 we were at the 8th position in this Indira Gandhi International Airport, that is of Delhi, was at the 8th position in the world's busiest airport list of 2025. This data is released by OAG, that is your official airline guide. This is a UK based air consultancy firm. Which airport was on the first position? It is Dubai International Airport that secured the top position here, that is considered to be the busiest airport in the world with almost 4.8 million seats, making a 1% increase in the capacity as compared to Feb 2024, right? Let me show you the list also. First is Dubai Airport, second is Atlanta Hartsfield Jackson International Airport of USA, and third is your Tokyo International Airport in Haneda, right, in Japan, and our country's Indira Gandhi International Airport was on the 8th position. Next is banking and finance. Asian Development Bank has approved $200 million loan to expand the urban services in which area? In Kolkata, right? I repeat, Asian Development Bank, they will be investing, or they will be providing how much amount of loan to expand the urban services in Kolkata. So the loan amount will be $200 million, right? This will encourage the development of climate and disaster resilient sewerage and drainage infrastructure. The aim of this basically is to enhance the Kolkata city's livability. Here, Kolkata, it is one of the India's most populous and highly populated cities that faces various issues due to the poor drainage and sewer system. So in order to develop this drainage and proper sewerage systems, this $200 million loan has been granted to them. The next thing, remember, there is a project for which this amount has been allocated. The name of this project is K-Sharp, right? If we talk about this K-Sharp, 84 km of trunk and secondary sewage and drainage pipelines will be established.
176 km of lateral sewerage and drainage pipelines connecting homes, 50,000 new domestic sewer connections, construction of one sewage treatment plant, and 5 new pumping stations to prevent the water logging. Then if we talk about Asian Development Bank, who is the president? Masasato Kanda. Then where is the headquarter? Manila, Philippines, established in 1966, and there are 68 member countries here. Next is economy and business. SIDBI, they have recently signed a memorandum of understanding with TCL. What is TCL? Tata Capital Limited, right? This will strengthen the financing avenues for MSMEs. See, we or the government of India, they are focusing on the growth of these MSMEs to promote them, to provide them with the finances that are required for their day-to-day operations. And also, these government of India is promoting the services and the products that are being manufactured by these MSMEs in the international market, and that is the reason the quality is being talked about, that the top-notch quality should be there of the products and services, right? Then only we will be able to get a better price and also the orders from international market, right? So to promote these and to provide the financing for these MSMEs, to strengthen the financing for the MSMEs, here SIDBI, they have signed this MOU with TCL. Next is MFIN. MFIN is your microfinance institution network, right? So microcredit disbursement has declined 35.8% to 22,091 crore rupees in third quarter of FY25. I repeat, Gurugram Haryana based microfinance institution network of India, this is an umbrella body of microfinance institutions. They have recently released the 52nd edition of the micrometer. Let me show you 52nd edition of the micrometer for third quarter of FY25 report. This report revealed that the disbursement of the microfinance loans has decreased by 35.8% to 22,091 crore rupees during the third quarter. Here the gross loan profit portfolio of the sector as of December 31st stood at 3,85,348 crore rupees. Also, apart from this, remember, as of December, the asset under management of these microfinance institutions stood at 1,42,695 crore rupees, reflecting a decrease of 0.1% against the third quarter of FY24. Also, as per the report, the average loan amount disbursed per account during the third quarter was 51,691 crore rupees, showing an increase of 15.2% compared to the same quarter to FY24. Right? If we talk about MFIN, Microfinance Institution Network of India, who is the Chief Executive Officer and Director? Dr. Alok Mishra. Headquarter where? It is in Gurugram, Haryana. Next is Inox. India became the first to earn the IATF 16949 certification for cryogenic fuel tanks. I repeat, Inox India, right? They have recently became the first Indian manufacturer of the cryogenic equipment to receive the International Automotive Task Force certification, that is 16949 certification, and this is for the cryogenic fuel tank production. Directly remember this, student, Inox India, and today even the stock of this Inox India was rallying, right? It was almost 10 to 15% up. This achievement will position India's Inox India as a pioneer in the integrating this cryogenic technology with automotive applications in the growing LNG fuel tank sector in India. Right? Next is appointments and resignation. Chairman of Tata Sons N. Chandrasekaran was appointed as the chairman of RTEF. RTEF is your Ratan Tata Endowment Foundation. So N. Chandrasekaran, the chairman of Tata Sons, was appointed as the chairman of Ratan Tata Endowment Foundation, a Section 8 entity established by late Ratan Tata. Right? Take a note of this. Also, Chandrasekaran will finalize the staff to run the foundations and regulates its management structure shortly. However, it may take up to 6 months for Ratan Tatas to go through all the formalities. Also, the foundation is dedicated to philanthropy and technological research to benefit the Indian society. So, chairman of Tata Sons N. Chandrasekaran was appointed as the chairman of RTEF, that is Ratan Tata Endowment Foundation. Very important. Moving on, acquisitions and mergers. CCI has approved PRHCL, that is your Paloma Rahim Holdings Company Limited's proposal to acquire Japanese air conditioner maker Fujitsu Journal for $1.6 billion. Directly remember this, students.
Next is science and technology. DRDO and Indian Navy, they have successfully conducted the test flight for first of its kind NASM SR in Odisha. This is a missile, here you can see in the picture, and this was the Indian Navy's helicopter that was used to carry out this trial. What is the name of that helicopter? First thing, it is Sea King 42B helicopter. Also tell me students, this Sea King helicopter will be replaced by which helicopter? Right, we discussed this few days back. Where was this test held by DRDO and Indian Navy? It was held at Chandipur of the coast of Odisha, and this is the missile that is NASM SR that was recently tested. NASM is your naval anti-ship missile, short range, right? This was testing using this Sea King 42B helicopter. Very important students, right? And it was DRDO along which that tested it. If we talk about DRDO, who is the chairman of DRDO? Dr. Samir V. Kamath, headquartered in New Delhi. Moving on students, next is SpaceX. They have successfully launched the third moon landing mission with Athena, right? I repeat, Athena, this is the name of the lander, right? So SpaceX, owned by Elon Musk, they have launched the third moon landing mission of 2025 that has been named IM-2, that is Intuitive Machines 2, that is carrying a lander by the name Athena, right? Very important. It is also carrying Nova C class robotic lunar lander of Houston, Texas, right? And this will be this SpaceX will be launching this lander Athena and this Nova C using the Falcon 9 rocket. It will be launched from NASA's Kennedy Space Center in Florida, USA. Correct? Very important. Next is this IM-2 mission. This is a crucial part of NASA's Commercial Lunar Payload Service Initiative and Artemis program. This Athena lander aboard 3 foot, that is 1 meter drone Grace is also there, named after the late computer programming pioneer Grace Hopper, which will attempt various test hops before venturing into the crater. Correct? So that means a helicopter or basically a drone by the name Grace will be there. A lander Athena will also be launched. These are important parts. Next is renowned Gujarati poet and Sahitya Academy awardee Anil Ramanath Joshi has recently passed away. He passed away in Mumbai, Maharashtra, born in 1940 in Gujarat, and in 1990 he was honored with Sahitya Academy Award for Gujarati literature for his insightful essay collection, that is Statue. Very important students, right? Next is Oscar-winning actor Gene Hackman. As you can see him in the picture, has also passed away at the age of 95 in Mexico, USA. Born in 1930 in California, USA. He won his first Oscar award in 1971 for Best Actor in the movie The French Connection. Next is important days. World NGO Day is observed on 27th of February. This day is observed to basically create awareness across the globe to recognize, celebrate and honor the contribution of non-government organizations and non-profit organizations, the selfless work they are doing to enhance the society, to help the society, right? And this year it was the 12th edition of this World NGO Day that was observed. There is a theme, students, and theme is important, so do take a note of it. Empowering grassroots movements for a sustainable future. This is the theme here. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning. Morgan Stanley, they have recently lowered the GDP projection for India to 6.3% for which FY? It is for the FY25. Next, which department under the Ministry of Finance has recently granted in principle approval for the consolidation of IFCI Group? It is Department of Financial Services. And this plan also includes consolidation of the Stock Holding Service Limited, IFCI Financial Service Limited, IFIN Commodities Limited and IFIN Credit Limited into a single entity. Next, according to OECD's Economic Outlook for December 24 released in December, India's growth forecast by 20 basis points to dash in FY25. So, India's growth forecast has been increased to 6.8%. So you must be seeing here, students, that different organization is predicting different data, but on an average if we see it, India will be growing between 6.4 to 6.8%. The closer approach is that we will be close to 6 to 6.4% in the GDP. Next, 9 Indian states with
existing or proposed cash transfer programs for women had a total budget estimate of $18 billion for FY25, which represent dash of India's GDP according to Goldman Sachs Global Research, which represents 0.5% of the India's GDP. The 9 states that include your Maharashtra, Karnataka, Assam, Bihar, Delhi, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, Jharkhand, right? And it has been observed that the cash transfer schemes have played a pivotal role in attracting the women voters. Next, which organization has stated that the growth in the assets under management of NBFCs is expected to moderate to 15 to 17% in FY25 as well as in FY26? It is CRISIL Ratings Limited, and this marks a decline of 600 to 800 basis points from a strong growth of 23% in FY24. Next, which among the following is not included in the abolition of the special additional excise duty, also known as the windfall tax, by the Government of India in December 2024? Among the following which is not included here, so natural gas is not included in the abolition of the special additional excise duty, also known as windfall tax. So windfall tax on these commodities will be reduced. Next, in December, State Bank of India released their latest Economic Research Department report stating that India's GDP growth is how much? It is 6.3% for FY25. Next, according to Asian Development Bank's report, that is Asian Development Outlook for December 24, steady growth amid a shifting global policy landscape, India's GDP growth forecast for FY25 has been reduced to dash. It has been reduced to 6.5%, that was earlier estimated by Asian Development Bank to be 7%. Next is according to S&P Global Ratings report, India outlook for 2025. So India's GDP rate will remain unchanged at 6.8% for FY25. See, you are seeing different organization giving the different data. Next, which car has recently partnered with, or which car group has partnered with UNICEF to transform the educational landscape for 1 lakh children across 4 states in India? It is your BMW Group. It is Munich, Germany based BMW Group that partnered with UNICEF to transform educational landscapes for 1 lakh children across 4 states in India. Which are these 4 states? Assam, Jharkhand, Tamil Nadu and West Bengal. Next, which among the following are right? About the National Apex Chamber, the PhD Chamber of Commerce and Industry, they have released this report, right? Among them, which of the following is right? Right? We have to tell me the correct one. If we look at the options, all these 3 are rightly mentioned. Next, Fitch Ratings Incorporation recently revised the India's GDP growth forecast for FY25, lowering it to dash from the previous estimates of 7%, lowering it to 6.4% from the previous estimates of 7%. Next is which company has recently extended their partnership with Telenor Denmark, a leading mobile operator in Denmark, for another 5 years to enhance information technology systems. It is TCS, Tata Consultancy Service Limited, and it has been extended for 5 years. Next is which company has collaborated with Amazon Finance India Private Limited to create innovative credit solutions for customers and merchants by offering loan products through Amazon's application and website. It is L&T Finance Limited. This partnership was unveiled at RAISE 24, that is India's leading AI-focused event focusing on banking, financial service and insurance sector. Next, CARE Edge Rating, they have recently revised the GDP projection for India for FY25 to 6.5%, that was earlier estimated to be 6.8%. Next, what is the total foreign direct investment inflow in India since April 2000 as per the data released by DPIIT? So since April 2000, India has received a total FDI of $1 trillion. Next, which company's board of directors recently approved the incorporation of a healthcare subsidiary to provide healthcare allied services? So which company is it? It is your PB Fintech. Next, in December, TCS Limited, an information technology service provider based in Mumbai, Maharashtra, collaborated with Landis+Gyr, an energy management company that is based in Dash, to offer innovative solutions that help utilities improve energy efficiency. Right, that is based in Chem, Switzerland. Take a note of it. Next, which bank has recently partnered with TCS to modernize the bank's digital core for enhanced customer
services. It is Bank of Bhutan. It is Bank of Bhutan. Next, in December, Finance Minister of UP Suresh Kumar Khanna presented a second supplementary budget of 17,865 crore rupees, correct, for UP for FY25. Next is, in December, Hindustan Petro Corporation Limited, they signed an agreement with NICDC Logistics Data Service Limited to integrate their application programming interface with what? It is with Unified Logistic Interface Platform. Next is, in December, India Ratings and Research released its FY 2026 macroeconomic outlook. It is projected that the Indian economy will be growing at dash in FY26. Indian economy will be growing at 6.6% in FY26. Retail inflation is projected at 4.4% in FY26. Next, which company has become the first banking, financial service and insurance company to offer all three core financial services on ONDC network, that is Open Network for Digital Commerce? It is your Aditya Birla Capital Limited. So that's all for the day, students. Now let's move to revision part that will be beneficial for your learning. Next, students, is our homework section. First is, tell me recently, exercise Dharma Guardian. This is conducted between which two countries? Then the addition as well as the location, and apart from this, these two countries conduct which other exercise together? Second question, recently, in order to promote the tribal handicrafts and handloom products, right? For the tribal handicraft and handloom products, TriFed, they have recently signed a memorandum of understanding with which institution? Third question, ICC Champions Trophy is scheduled to take place in which country, right? And India will be playing in which country? Fourth question, a digital platform was launched, right? And this digital platform will promote women entrepreneurship and women empowerment. What is the name of that platform? Let me give you a hint. It starts with M. So these are your 4 homework questions, students. Now let's move to the Hindi segment of this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 28 फरवरी के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने एक फंड इस्टेब्लिश किया है जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है। देन हम बात करेंगे, इंडिया में एक MOU साइन किया गया है DPIIT एंड पेटीएम के द्वारा, ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनटेक स्टार्टअप्स को ग्रो किया जा सके। नेक्स्ट थिंग, हम इंडियन आर्मी के द्वारा एक MOU साइन किया गया L&T के साथ, वो किस लिए, ये क्या है ACDS सिस्टम्स, इनको डिस्कस करेंगे, एंड कितने ACADS सिस्टम्स के लिए साइन किया गया। नेक्स्ट थिंग, हम बात करेंगे एक और पार्टनरशिप की जो कि इंडिया और फ्रांस के द्वारा की गई है, ताकि एक इनोवेशन हब सेटअप किया जा सके जिससे हम रिसर्च पे प्रमोशन कर सकें, राइट? इन सभी चीज़ों को एंड मैनी मोर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ तो सब्सक्राइब जरूर करना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application, student, by the name Careers Cloud, which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded, which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description.
चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक $16 मिलियन का एक फंड इस्टेब्लिश करा है। ये फंड है TIAF, जो कि है ऑस्ट्रेलिया इंडिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर फंड। $16 मिलियन का ये फंड रहेगा एंड यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा इस पैसे को, ताकि इंडिया एंड फ्रांस के बीच में जो रिलेशन है उसको यहाँ पे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशन है उसको ग्रो किया जा सके, यहाँ पे ट्रेड को फ्लरिश किया जा सके एंड नई बिजनेस डील्स की जा सके। सेक्टर्स जैसे क्लीन एनर्जी, ऑब्वियसली क्योंकि एनर्जी तो आजकल ये एक फायर्स टॉपिक है, हर जगह यही होता है। देन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, स्किल्स लाने के लिए यूथ में, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए एंड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा एंड इन सेक्टर में इसको लाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? एंथनी एल्बनीज। कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की? कैनबेरा। एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे करेंसी यूज की जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, DPIIT जो कि है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पेटीएम के साथ, ताकि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनटेक स्टार्टअप्स है ना उसको यहाँ पे हम ग्रो कर सकें, राइट। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो फिनटेक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पेटीएम का सोलर साउंड बॉक्स यहाँ पर आया, राइट। ये सोलर साउंड बॉक्स इंडिया में बनाया गया है, मेक इन इंडिया, राइट। तो इससे क्या हुआ? इंडिया के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग का मौका मिला, इंडिया के लोगों में ये यहाँ पे जॉब्स जनरेट हुई, राइट। और इंडिया का पैसा इंडिया में ही सर्कुलेट हुआ। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग को फोकस करते हुए एंड फिनटेक स्टार्टअप्स को यहाँ पे ग्रो करने का काम किया जाएगा, राइट। एंड इसके लिए DPIIT एंड पेटीएम के द्वारा यहाँ पे ये MOU साइन किया गया। यहीं पे आप देखेंगे कि कई सारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका इनिशिएटिव होता है पेटीएम का, राइट, इसके अंडर भी क्लाइमेट से रिलेटेड, Web3 से रिलेटेड, एग्रीटेक से रिलेटेड, मोबिलिटी, इन सब के ऊपर भी यहाँ पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी। इन्होंने एक MOU साइन किया L&T के साथ फॉर ACADA सिस्टम, ACADA सिस्टम। ये क्या है? बेसिकली ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म। आई रिपीट, ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म। ऐसे 223 केमिकल डिटेक्शन सिस्टम्स को यहाँ पे लाया जाएगा। 80.43 करोड़ की लागत से इनको परचेज किया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा बाय इन इंडिया एंड इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। ये रहेगा, मतलब इंडिया में ही इसकी सारी सोर्सिंग हुई है, इंडिया में ही इसको डिजाइन किया गया है और इंडिया में ही इसको बनाया गया है। एंड 80% ऑफ द कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे लोकली सोर्स किए गए हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को प्रमोट करता है, राइट। ये जो ACADA सिस्टम है, ये इंडियन आर्मी की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। एंड इवन इससे आप देखेंगे कि जो ड्रग्स हो जाते हैं, राइट, जैसे आपका जो भी केमिकल हो गए, राइट, उसको यहाँ पे डिटेक्ट करने का ये बहुत आसानी से काम करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे स्टूडेंट्स। इंडिया के CCAMP, ये क्या है? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म, राइट। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने एंड फ्रांस के पेरिसेंटे कैंपस के साथ मिलकर अभी एक अग्रीमेंट साइन किया, ताकि इंडो फ्रेंच लाइफ साइंसेज सिस्टर इनोवेशन हब को सेटअप किया जा सके। इससे जो हेल्थ केयर डोमेन है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट होती हुई दिखेंगी हमें हेल्थ केयर सेक्टर में। इवन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस भी लाने की बात की जाएगी, कि जो पब्लिक जो जैसे बहुत ही डिटेल्ड सॉल्यूशंस, राइट, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम से फेस करें, उनको यहाँ पे उनको एड्रेस करके उनके ऊपर रिसर्च करके वो यहाँ पे सॉल्व करने का काम किया जाएगा। इवन आप पिक्चर में देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन राइट पे एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन द लेफ्ट, राइट। एंड यहाँ पे दोनों कंट्रीज के द्वारा एक LOI भी साइन किया गया, लेटर ऑफ इंटेंट, ताकि वन हेल्थ एंड डिजिटल हेल्थ, इन दोनों इनिशिएटिव्स पे, इन दोनों क्रिटिकल एरियाज पे भी काम किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट्स की, राइट। ये डाटा रिलीज किया गया OAG के द्वारा, जो कि है ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। ये यूके की एयरलाइन कंसल्टेंसी फर्म है एंड इनके द्वारा डाटा रिलीज किया गया कि वर्ल्ड के वो कौन से एयरपोर्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं ग्लोबली। तो यहाँ पे अगर हम देखें, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारा इंडिया 8th पोजीशन पे आता है, जहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली का एयरपोर्ट है, वो 8th पोजीशन पे आता है इन द टॉप 10 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट। ठीक है, मार्क करेंगे स्टूडेंट्स इसको। अगर हम बात करें दिल्ली एयरपोर्ट का, ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, राइट, इट हैज़ रजिस्टर्ड द हाईएस्ट कैपेसिटी ग्रोथ इन Feb 2025 इन द सेम मंथ लास्ट कंपेयर के देखें तो यहाँ पे 3.4% सीट्स इंक्रीज होती हुई हमें देखी, राइट। तो आप देख सकते हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट UAE का फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे अटलांटा हट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट ऑफ USA ऑन सेकंड, एंड थर्ड पे हनेडा एयरपोर्ट जो कि टोक्यो का जापान में है।
मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आ जाते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भी $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया है ताकि अर्बन सर्विसेज को एक्सपेंड किया जा सके कोलकाता में। देखो कोलकाता बहुत पुरानी सिटी है स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे जो सीवरेज सिस्टम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो पहले के हिसाब का बना है, तो इसको अपडेट करने के लिए, राइट, ताकि वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम ना फेस हो, राइट, डे टू डे जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब ना हो, तो इसीलिए यहाँ पे ये $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया है। एंड इसका एक प्रोजेक्ट रहेगा के शार्प, राइट, ये के शार्प प्रोजेक्ट यहाँ पे अर्बन सर्विसेज को कोलकाता वेस्ट बंगाल में एनहेंस करने का काम करेगा, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे जो के शार्प प्रोजेक्ट है, इसमें 84 किलोमीटर का ट्रंक एंड सेकेंडरी सीवेज एंड ड्रेनेज पाइपलाइंस को बिछाया जाएगा, 176 किलोमीटर के लेटरल सीवरेज एंड ड्रेनेज पाइप्स आएंगे, 50,000 नए डोमेस्टिक सीवर कनेक्शंस आएंगे, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एज वेल एज 5 नए पंपिंग स्टेशन यहाँ पे जो कि वाटर लॉगिंग प्रिवेंट करेंगे, इनको लाया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो प्रेसिडेंट कौन है, वो है मसातो कांडा। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, मनीला, फिलीपींस। 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था एंड 68 कंट्रीज यहाँ पे पार्ट रहेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। सिडबी के द्वारा भी एक एमओयू साइन किया गया टीसीएल के साथ। टीसीएल क्या है, टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ, ताकि एक एमओयू साइन किया जा सके फॉर एमएसएमईज फाइनेंसिंग, राइट। एमएसएमई की फाइनेंसिंग के लिए यहाँ पे ये एमओयू साइन किया गया है, राइट, ताकि हम देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत प्रमोट करती है कि इंडिया के जो एमएसएमईज है ना, उनको हम ग्रो कर सकें, उनको फ्लरिश कर सकें, उनको हेल्प कर सकें कि वो ज़्यादा यहाँ पे अचीव कर सकें इंटरनेशनल मार्केट में। इवन जो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो वो सर्विसेज बनाते हैं, उन सर्विसेज को यहाँ पे डिलीवर करने के लिए, राइट, एंड उन सर्विसेज को क्वालिटी वाइज बेटर क्वालिटी उनकी लाने के लिए यहाँ पे ये साइन किया गया है एमओयू, करेक्ट। तो सिडबी ने टीसीएल के साथ यहाँ पे एमओयू साइन किया गया ताकि एमएसएमई फाइनेंसिंग की जा सके, उनको ग्रो करने में हेल्प किया जा सके, एंड कहीं पे भी अगर उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, राइट, या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, कैश क्रेडिट चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, लोन अगेंस्ट प्रॉफिट चाहिए या बिजनेस लोन चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रोफिन इंस्टीट्यूशन, राइट। इनके द्वारा भी माइक्रो क्रेडिट डिस्बर्समेंट की बात की गई, जो कि डिक्लाइन कर गया 35.8% से टू 22,091 करोड़ रुपीस इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ FY25, राइट। अगर हम यही कंपेयर करें लास्ट ईयर के, तो यहाँ पे 35.8% की ग्रोथ हमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। ऑल्सो जो नए लोन्स डिस्पर्स किए गए हैं ना, उसमें भी नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली ऑफ 29.2%। अगर ग्रोस लोन पोर्टफोलियो की बात करें एज ऑफ दिसंबर 31, 2024, वो था 3,85,448 करोड़ रुपए का। ऑल्सो अगर मैं एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं ऑफ दीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये थे 1,42,695 करोड़ रुपए के, एंड ये 0.1% डिक्रीज है एज कंपेयर टू थर्ड क्वार्टर ऑफ FY24 एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें पोर्टफोलियो एट रिस्क की, राइट, तो जो अनपेड लोन्स हैं ऑफ मोर देन 30 डेज, इट हैज डिक्रीज टू 8.8% एज ऑफ 31 दिसंबर 2024। चलिए अगर माइक्रोफिन इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डायरेक्टर कौन रहेंगे, वो है डॉक्टर आलोक मिश्रा। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, गुरुग्राम, हरियाणा में। 2009 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं आइनॉक्स इंडिया। स्टूडेंट्स ये वो पहली इंडियन कंपनी बन गई है जिन्होंने अर्न किया है IATF 16949 सर्टिफिकेशन को फॉर क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक्स, राइट। तो ये है इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स 16949 सर्टिफिकेशन फॉर क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक प्रोडक्शन के लिए, राइट। तो आइनॉक्स इंडिया ये वो पहली कंपनी बन गई है, वडोदरा गुजरात बेस्ड ये कंपनी है। इवन अगर आपने देखा हो आज इनका स्टॉक 10 से 15% ये राइज पे था, राइट, एकदम ग्रोथ हुआ बिकॉज ऑफ दिस सर्टिफिकेशन इटसेल्फ, किनको ये सर्टिफिकेशन मिल गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। तो चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स एन चंद्रशेखरन, इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ RTEF। RTEF क्या है, रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन का, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन 8 एंटिटी है जो कि लेट रतन टाटा जी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, जो कि ध्यान रखती है आपका फिलेंथ्रोपिक रीजंस के लिए, राइट, हेल्थ के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, एंड जो भी तरीके से लोगों की यहाँ पे हेल्प की जा सकती है टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए, या फिर जिससे भी इंडियन सोसाइटी को मदद की जा सकती है उसके लिए, ठीक है। तो इनके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट आ जाते हैं CCI ने अप्रूव किया PRHCL का एक्विजिशन ऑफ फिजित्सु जनरल फॉर $1.6 बिलियन। ये वो कंपनी है जो कि AC बनाती है, एंड अभी CCI ने अप्रूव किया है कि पलोमा रहीम होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड ये एक्वायर करेंगे फुजित्सु जनरल को फॉर $1.6 बिलियन।
नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट साइंस एंड टेक पर। डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड NASM-SR ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ पर? चांदीपुर में, राइट। इसको टेस्ट किया गया डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी के द्वारा मिलकर इसको टेस्ट किया गया। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये वो मिसाइल है NASM-SR। इसको 2 मिनट में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देख लो ये हेलीकॉप्टर जिसकी मदद से इसको टेस्ट किया गया। क्या नाम है इस हेलीकॉप्टर का? ये है सी किंग 42B हेलीकॉप्टर, ठीक है। एंड ये जो मिसाइल है ये क्या है? NASM-SR मतलब नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, करेक्ट। एंड ये रिप्लेस करेगी किस मिसाइल को? ये सी ईगल मिसाइल को ये रिप्लेस करेगी, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, करेक्ट। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। एंड इवन सी किंग 42B हेलीकॉप्टर को कौन सा हेलीकॉप्टर रिप्लेस कर रहा है? ये कुछ दिन हमने पहले डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्पेसएक्स। इनके द्वारा भी लॉन्च किया गया 3rd मून लैंडिंग मिशन को, जहां पे अथेना इसका लैंडर रहेगा। इस लैंडर के साथ साथ एक ड्रोन भी यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, राइट, इस लैंडर के अंदर, जो कि जब हम मून पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे रिसर्च करने का ये काम करेगा, करेक्ट। इस ड्रोन का नाम रहेगा ग्रेस, करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, राइट। तो स्पेसएक्स जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, इन्होंने 3rd मून लैंडिंग मिशन लॉन्च किया, जिसमें लैंडर रहेगा एथेना। एथेना के अंदर एक ड्रोन रहेगा जिसका नाम रहेगा ग्रेस। इसको फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा USA से इसको लॉन्च किया जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इस मिशन के बारे में, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिनोन्ड गुजराती पोएट एंड साहित्य अकेडमी अवार्डी अनिल रामानंद जोशी। इनका रिसेंटली निधन हो गया। 1940 में इनका जन्म हुआ था गोंडल गुजरात में, एंड 1990 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर आ जाते हैं ऑस्कर विनिंग एक्टर जीन हैकमैन। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, राइट। इनका निधन हुआ एट द एज ऑफ 95 न्यू मैक्सिको USA में। 1930 में इनका जन्म हुआ था, एंड 1971 में इनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर बेस्ट एक्टर इन द मूवी द फ्रेंच कनेक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स हम 27 फरवरी को। एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो लोगों की मदद करती हैं, सेल्फलेस इनके एफर्ट्स रहते हैं वॉलंटियर्स के, राइट। ये लोगों की हेल्प करती हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ केयर में हो, चाहे खाने से रिलेटेड हो, राइट। तो एम्पावर करती है लोगों को जो कि मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ हैं या लोकल सोसाइटी हैं या लोकल पीपल हैं जो अपना ध्यान नहीं रख सकते, राइट, जो कि पुअर पीपल हैं, तो उनकी यहाँ पे हेल्प करने का ये काम करती है। और इस बार हमने 12वां एडिशन ऑब्जर्व किया है इस वर्ल्ड एनजीओ डे का। इसकी एक थीम रहेगी एम्पावरिंग ग्रास रूट्स मूवमेंट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स रिविजन पार्ट पर, राइट। देन हम मूव ऑन करेंगे होमवर्क सेक्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं रिविजन पार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉर्गन स्टैनली ने प्रोजेक्ट किया इंडिया का जीडीपी प्रोजेक्शन कितना? 6.3% फॉर विच फाइनेंशियल ईयर? फॉर FY25। तो मॉर्गन स्टैनली 6.3 प्रोजेक्ट कर रहा है। फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कि अंडर विच डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्होंने ग्रांट किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ IFCI ग्रुप। तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू OECD इनके इकोनॉमिक आउटलुक डाटा रिलीज किया गया फॉर दिसंबर 2024। इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया की जीडीपी FY25 के लिए कितनी रहेगी? 6.8%। OECD के द्वारा 6.8%। नेक्स्ट, 9 इंडियन स्टेट्स विद एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स फॉर वीमेन हैड अ टोटल बजट एस्टिमेटेड $18 बिलियन। मतलब 9 ऐसी इंडियन स्टेट्स हैं जो कि डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगी वीमेंस को बाय ट्रांसफरिंग मनी इनटू देयर बैंक अकाउंट। तो ऐसे में जो टोटल बजट निकल के आया वो $18 बिलियन का यहाँ पे सामने निकल के आया फॉर सच स्कीम्स की डायरेक्ट मनी वीमेंस के अकाउंट में जाया जा सके, राइट। ये कितना परसेंट है इंडिया की जीडीपी का? तो ये 0.5% है इंडिया की जीडीपी का। ये गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल रिसर्च के द्वारा डाटा रिलीज किया गया। कहीं ना कहीं हमने देखने को मिला इसके बदौलत इंडिया का जो वीमेन वोटर काउंट है ना वो बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये फ्री बीज देना एक सही चीज़ है? आप नीचे कमेंट करके बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि क्या हमें ऐसे पैसा फ्री में अकाउंट में देना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली स्टेटेड दैट द ग्रोथ इन एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ NBFC इट इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट टू 15 to 17% इन FY25 एज वेल एज इन FY26। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा प्रोजेक्ट किया गया? क्रिसिल के द्वारा यहाँ पे प्रोजेक्ट करा गया।
नेक्स्ट आ जाते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबॉलिशन ऑफ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम विंडफॉल टैक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हटाया गया है, राइट। तो इसमें से नेचुरल गैस वो कमोडिटी नहीं है, बाकी सब पे जो विंडफॉल टैक्स है उसको एलिमिनेट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एसबीआई के द्वारा भी लेटेस्ट ईआरडी रिपोर्ट रिलीज की गई, जहां पे उन्होंने जीडीपी प्रोजेक्ट की गई इंडिया की कितनी, वो है 6.3% फॉर FY25। नेक्स्ट आ जाते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके द्वारा भी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिलीज की गई, जिसमें बताया गया पहले ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 7% से ग्रो करेगा इन FY25, वहीं पे इनके द्वारा अब ये प्रोजेक्शन घट के कितना हो गया, 6.5% का। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स, इंडिया का आउटलुक कितना है, या फिर इंडिया ये कितनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंडिया कितनी जीडीपी से ग्रो करेगा, 6.8% से ग्रो करेगा अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स। देन नेक्स्ट आ जाते हैं किस कार ग्रुप ने अभी रिसेंटली यूनिसेफ के साथ पार्टनर किया, ताकि इंडिया में जो एजुकेशनल लैंडस्केप है उसको और बेटर किया जा सके एंड 1 लाख बच्चों को अक्रॉस 4 स्टेट्स इन इंडिया यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा सके। 4 स्टेट कौन सी हैं, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड झारखंड, यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर काम करने के लिए ये टाई अप किया है। तो BMW ग्रुप ने, जो कि म्यूनिच जर्मनी बेस्ड कंपनी है, इन्होंने यूनिसेफ के साथ यहाँ पार्टनर किया। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल एपेक्स चैम्बर, द PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई। पूछा जा रहा है उसमें से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं। नेक्स्ट फिच रेटिंग्स, इन्होंने भी इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट करी। फिच के हिसाब से इंडिया 6.4% से ग्रो करेगा FY25 में। ये भी पहले 7% से प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब घटा के इन्होंने 6.4% कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक्सटेंड किया देयर पार्टनरशिप विद टेलीनॉर डेनमार्क, जो कि एक लीडिंग मोबाइल ऑपरेटर है इन डेनमार्क, फॉर अनदर 5 years टू एनहेंस IT सिस्टम्स। तो किस कंपनी ने यहाँ पे एक्सटेंड की अपनी पार्टनरशिप विद टेलीनॉर डेनमार्क, वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, एंड 5 साल के लिए ये यहाँ पे अपना पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंपनी ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया अमेजॉन फाइनेंस इंडिया के साथ, ताकि इनोवेटिव क्रेडिट सॉल्यूशंस को लाया जा सके फॉर कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स बाय ऑफरिंग लोन प्रोडक्ट्स थ्रू अमेजॉन्स एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं केयर एज रेटिंग्स, इन्होंने भी प्रोजेक्ट किया इंडिया का जीडीपी, जो ये पहले 6.8 प्रोजेक्ट कर रहे थे फॉर FY25, अब इन्होंने रिड्यूस कर दिया है टू 6.5%। नेक्स्ट आ जाते हैं टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितना देखने को मिला सिंस अप्रैल 2000। ये डाटा DPIIT के द्वारा रिलीज किया गया है, इनके हिसाब से इंडिया ने $1 ट्रिलियन का यहाँ पे अप्रॉक्स FDI देखने को मिला है इंडिया में सिंस अप्रैल 2000 से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं किस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिसेंटली अप्रूव किया इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ हेल्थ केयर सब्सिडरी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड अलाइड सर्विसेज, वो है PB फिनटेक। नेक्स्ट आ जाते हैं TCS लिमिटेड, जो कि एक IT सर्विस कंपनी है बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, इन्होंने कोलैबोरेट किया लैंडेस प्लस GYR के साथ, जो कि एक एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी है बेस्ड इन छम स्विट्जरलैंड, ताकि इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जा सके यूटिलिटीज़ के, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके। जैसे LED बल्ब्स आप देखते हैं, राइट, ये गेम चेंजर थे अप्लाइंसेज में, क्योंकि पहले जो बल्ब आते थे वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते थे, बिल बहुत ज़्यादा आ जाता था, लेकिन वहीं पर अगर हम LED यूज़ करें तो इससे बिल भी बहुत कम हुआ है, एनर्जी एफिशिएंट है ये। Next, which bank has recently partnered with TCS to modernize the bank's digital core for enhanced customer services? तो किस बैंक ने यहाँ पे पार्टनर किया है TCS के साथ, तो वो है बैंक ऑफ भूटान ने। नेक्स्ट, इन दिसंबर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूपी सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा सेकंड सप्लीमेंट्री बजट प्रेजेंट किया गया फॉर FY25। कितने का बजट था, 17,865 करोड़ रुपीस का ये बजट रहेगा, 17,865। नेक्स्ट आ जाते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है NICDC लॉजिस्टिक डाटा सर्विस लिमिटेड के साथ, ताकि इनके API को इंटीग्रेट किया जा सके किसके साथ, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ। ये क्रूशियल एडवांसमेंट रहेगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इन्होंने अपनी FY26 की मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किया। इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया 6.6% से ग्रो करेगा इन FY26। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंपनी ने अभी रिसेंटली वो पहली बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस कंपनी बनी, जो कि तीनों कोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड कराएगी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। कौन सी है, वो है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। DRDO ने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ नग मार्क 2, जो कि एक एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। देखो ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम क्या होता है, बेसिकली आपने यहाँ से लॉन्च कर दी मिसाइल, ये टैंक है, इसने अपना पाथ बदल लिया, तो ये मिसाइल भी ट्रैक करके इसको अपना पाथ अपने आप बदलेगी।
ये होता है फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल, राइट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये नग मार्क 2 का टेस्ट डीआरडीओ के द्वारा कहां पे कराया गया था, तो जैसलमेर राजस्थान में कराया गया, पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में इसको कराया गया था। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड द टाइटल ऑफ संगीता कालानिधि, किनको दिया गया, टीएम कृष्णा को दिया गया, राइट। एंड गीता राजा एंड परासला रवि, इन दोनों को संगीता कालाचार्य टाइटल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। तो एज ऑफ नाउ इंडिया का जो टर्म था 2 साल का था एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी एंड 1 जनवरी 2025 को वो एंड हो गया है। अब इंडिया की जगह पे 5 और कंट्रीज यहाँ पे ऐड की गई हैं। वो कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे आपकी इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, ये ऐड की गई हैं। अगर मैं यूएनएससी की बात करूं तो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यहाँ पर, राइट। सॉरी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। मूविंग ऑन, MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इशू की गाइडलाइंस फॉर द इंप्लीमेंटिंग कंपोनेंट्स लाइक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस अंडर द प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर कितना फंड अलोकेट करने की बात की गई, तो 100 करोड़ रुपीज यहाँ पे अलोकेट किए गए। मूविंग ऑन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 2960 करोड़ रुपीज का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को डिलीवर करने के लिए टू द इंडियन नेवी। तो वो कौन सी रहेगी, वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, डैश एंड अ स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट को यूज किया जाएगा। जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो अपनी ट्रांजैक्शन सेटल करना चाहते हैं दूसरे नॉन रेजिडेंट इंडियंस के साथ एंड वो अपने अमाउंट को सेटल करना चाहते हैं इंडियन रुपीस में। तो इंडियन रुपीस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट एंड स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स को यहाँ पे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने भी लॉन्च किया सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल जिसका नाम रहेगा INS उत्कर्ष। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसने इसको डिजाइन एंड डेवलप किया है, वो है L&T ट्यूब्रो, राइट। कटुपल्ली चेन्नई तमिलनाडु में इसका अपने शिपयार्ड में इन्होंने इसको लॉन्च किया। पहला जो मल्टीपर्पज वेसल था उसका नाम बताओ वो क्या था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये तो सेकंड हो गया INS उत्कर्ष, पहला INS कौन सा था, पहला मल्टीपर्पज वेसल, तो वो था INS समर्थक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, क्या नाम है उस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का जो कि अभी पिक्सल कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई। ये एक स्टार्टअप है, स्पेस एरोस्पेस स्टार्टअप है, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है। इनके द्वारा पहला प्राइवेट कॉन्स्टलेशन बनाने का काम किया जा रहा है जिसका नाम रहेगा फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन होना है अर्थ के चारों तरफ एक ग्रुप की सैटेलाइट्स यहाँ पे वर्क करती हैं, एक साथ काम करती हैं, राइट। एंड ये जो सैटेलाइट है बेसिकली आपका कॉन्स्टलेशन है जिससे डाटा कैप्चर किया जाएगा ऑफ मोर देन 150 स्पेक्ट्रल बैंड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली एडेड नया फीचर इनटू देयर CBDC एप्लीकेशन डिजिटल रुपी, जो कि हेल्प करेगी विद पीपल विद द डिसेबिलिटीज, राइट, स्पेशली विजुअली एम्पेयर्ड लोगों को। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नई फीचर्स लाए गए हैं CBDC के ई रुपी में, जिसमें आपका वॉइस ओवर कंपेटेबिलिटी होगा एज वेल एज जेस्चर बेस्ड नेविगेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा ताकि जो विजुअली एम्पेयर्ड लोग हैं उनको यहाँ पे सुविधा हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया एक 3 ईयर स्पॉन्सरशिप डील विद द इंडियन नेशनल खो खो टीम। सबसे पहले तो जो खो खो वर्ल्ड कप हुआ था ना इंडिया में हुआ था, इसका फर्स्ट एडिशन था, इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था एंड मेंस एंड वीमेंस इन दोनों की टीम ने यहाँ पे खो खो वर्ल्ड कप को अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जीत लिया है, राइट। तो किस स्टेट ने अभी अनाउंस की एक 3 साल की डील खो खो टीम के साथ विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 करोड़ रुपीज एनुअली जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2027 तक, तो ये रहेगी ओडिशा। मूविंग ऑन, डैश एंड डैश रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। देखो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया था एंड इनका फोकस रहता है कि हम इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ग्रो कर सकें। तो इसमें अभी रिसेंटली इंडिया का सीएट लिमिटेड एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हल, इन दोनों को ऐड किया गया है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में। नेक्स्ट, कौन सा एडिशन ऑफ लॉ परोस 25 मल्टी नेवल एक्सरसाइज हमें देखने को मिली जिसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया। 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक ये एक्सरसाइज हुई, तो ये 5वां एडिशन था लैपरोस एक्सरसाइज का।
नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक अग्रीमेंट साइन किया JBIC के साथ, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ। 120 बिलियन जैपनीज येन का ये लोन अमाउंट रहेगा एंड ये जो अमाउंट यूज किया जाएगा आपके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इसको यूज किया जाएगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा ये लोन लिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड एक्सपेक्टेड ग्रोथ, इंडिया की GDP की बात की जा रही है फॉर FY26 एंड FY27 के लिए इंडिया की GDP की क्या प्रोजेक्ट की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इन देयर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। तो 6.7 यहाँ पे प्रोजेक्ट की जा रही है इनके द्वारा कि इंडिया 6.7% से ग्रो करेगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 53rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान? नाजिब आजमी मिकाती को ये सक्सीड करेंगे। ये है नवाफ अब्दुल्ला सलीम सलाम। नेक्स्ट है जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन एंटरप्राइज, इन्होंने लॉन्च किया रीयूजेबल डैश रॉकेट फ्रॉम केप कैनेवरल स्पेस फोर्स बेस इन USA, राइट। क्या नाम रहेगा इस मिशन का? मिशन का नाम है NG-1, रॉकेट का नाम रहेगा न्यू ग्लैन रॉकेट। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, पाकिस्तान की वो पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का नाम बताओ जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च की गई। चाइना के जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट का नाम है PRSE, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन 1। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने अभी लॉन्च किया लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी इन एशिया इन जनवरी 2025, जिसको डिजाइन किया गया टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू द वेव्स एंड करंट्स फॉर इंडियन पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्टल इंजीनियरिंग, IIT मद्रास। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, राइट, एज अ पार्ट ऑफ सेवरल सिटीजन फोकस्ड इनिशिएटिव्स इन न्यू दिल्ली। तो क्या नाम रहेगा? वो है संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। बेटर सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, राइट। एंड ये आपका संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन बेसिकली हेल्प करेगा टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज, राइट, बेटर टेलीकॉम सर्विसेज, एंड जो फ्रॉड्स होते हैं टेलीकॉम फ्रॉड्स उनके अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो स्टूडेंट्स होमवर्क क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेरात फेस्टिवल ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? सेकंड क्वेश्चन, अभी स्वायत्त इनिशिएटिव, पहले तो इसकी फुल फॉर्म बता दो इस इनिशिएटिव की, राइट। ये कितने साल हो गए हैं इसको सेलिब्रेट करते हुए एंड ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट। देन थर्ड क्वेश्चन, इसी के साथ साथ अभी चाइना अंडर वाटर अपना एक जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जैसे चाइना का टिएंगोंग स्पेस स्टेशन है, ऐसे ही अंडर सी वाटर बेस बना रहा है, उस बेस का नेम क्या है वो बताओ। एंड फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक गोल्ड वीजा लॉन्च किया गया है, राइट। उस गोल्ड वीजा की कितनी अमाउंट रहेगी कि आप उस अमाउंट को पे करो एंड आपको US की सिटीजनशिप मिल जाएगी, राइट। एंड कब से वो लागू हो जाएगा उसके बारे में डिटेल में बताओ। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट। सेशन पसंद आया तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे लाइक्स चाहिए आज की वीडियो में।